Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Saran Leeb and I am going to teach you software testing. अभी तक हम लोगों ने जे यूनिट के बारे में पढ़ा है, यूनिट टेस्टिंग के बारे में पढ़ा है कि जो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स होते हैं हम उनको किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से जे यूनिट में उनके टेस्ट केसेस डेवलप कर सकते हैं. But now, as we have now learned about the J unit, it means that now we should progress about the integration testing. So the content for today is about the integration testing. In that integration testing, first we should have a knowledge about the interface. So we will learn about the different types of interface, then we will learn about the different types of errors that will be leading to interface errors, or you can say integration errors, and afterwards integration techniques that are incremental, top down, bottom up, big bang, sandwich. Okay, so let's begin. First of all, you see that module 1 alone is working fine, module 2 alone is working fine, it's tested and it's working fine. But now module 1 is integrated with module 2, but now module 2 or it may be module 1 is not working fine. So what happens when we have combined both the modules? It means that independently our standalone modules are working fine. Module 1 and 2 both are working fine when they were standalone or they were independent, but now they are dependent on each other. They have a communication between both of them. So it means that there is some error. So जहाँ पे वो एरर कॉज होगा वो आपका ये लिंक होगा, कम्युनिकेशन पाथ आप कह सकते हैं. तो इसको आप कह सकते हैं कि जब आपने मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 को एक दूसरे के साथ इंटरफेस किया तो यहाँ पर जो एरर आ रहा है वो बेसिकली इंटरफेस एरर है. और ये क्यों आ रहा है? बिकॉज आपने दोनों मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया, दैट्स व्हाई इट्स इंटीग्रेशन एरर. सो जब प्रोग्रामर्स टेस्ट करते हैं अपने प्रोग्राम्स को तो 50% उनके पास इंटीग्रेशन एरर्स आते हैं. अगर 50% बाकी पूरे सिस्टम में जो एरर, चाहे वो जे यूनिट है चाहे वो रिक्वायरमेंट एरर है जो भी, लेकिन उनके पास 50% एरर्स आते हैं जो कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड होते हैं. इसका मतलब है जब वो दो मॉड्यूल्स को कंबाइन करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा एरर्स आने के चांसेस होते हैं. देयरफॉर सब मॉड्यूल्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके जो रेलिवेंट हो उनको कंबाइन करके चेक किया जा सकता है, वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी. ठीक है. Now we have different type of interface. We have three common paradigms for interfacing module, that is procedure call interface, shared memory interface, message passing interface. So the problem arises when we put modules together because of interface error. तो problem कहाँ पे आती है? जब हम modules को इकट्ठा करते हैं, उनको एक दूसरे के साथ रख के टेस्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास interface errors होते हैं. Interface errors हैं क्या? Interface errors are those that are associated with structures existing outside the local environment of a module. So remember that they exist outside of the local environment of a module. तो मॉड्यूल की लोकल इन्वायरमेंट से बाहर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मॉड्यूल इनको यूज जरूर कर रहा होता है. सो मॉड्यूल इज यूजिंग इंटरफेस टू कंबाइन विद द अदर मॉड्यूल, बट इसका स्कोप जो है वो मॉड्यूल के अंदर नहीं होता बल्कि मॉड्यूल से बाहर होगा. ठीक है. तो जो मॉड्यूल से बाहर है लेकिन मॉड्यूलों से यूज करके दूसरे मॉड्यूल के साथ कंबाइन हो रहा है, वहां पे जो एरर आ रहे होते हैं वो आपके पास इंटरफेस एरर्स हो रहे हैं. नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेस एरर्स. जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन एरर्स हो सकते हैं, इनएडिक्वेट फंक्शनैलिटी, लोकेशन ऑफ फंक्शनैलिटी है, चेंजेस इन फंक्शनैलिटी, एडिड फंक्शनैलिटी, मिसयूज ऑफ इंटरफेस, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरफेस, डेटा स्ट्रक्चर अल्टरेशन, inadequate error processing, addition to error processing, inadequate post processing, inadequate interface support, initialization or value errors, validation of data constraints, timing or performance problems, coordination changes, hardware, software and a lot of other जो आपके पास इंटरफेस एरर्स हैं. कुछ मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ. जैसे कि कंस्ट्रक्शन एरर की अगर आप बात करें तो सी लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि आप हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड हेडर फाइल डॉट एच. तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या हो रही है, आप एक इंटरफेस को ऐड कर रहे हो जो आपकी सी की लाइब्रेरी से कॉलिंग करते हो आप उन फंक्शंस को, और जो आप अपना प्रोग्राम कर रहे हो ये हेडर फाइल उसकी इंटरफेस है, कम्युनिकेशन वे है. तो लेट्स सपोज आप इनअप्रोप्रिएट कोई हेडर फाइल डालते हो और आप
वहाँ पे इनअप्रोप्रिएट हेडर फाइल लिखने के बाद प्रोग्राम जो आप कर रहे हो उसमें कोई और हेडर फाइल रिक्वायर्ड है, इसका मतलब है यू आर नॉट यूजिंग द एग्जैक्ट इंटरफेस। सो यहाँ पे आपके पास इंटरफेस एरर आएगा। सिमिलरली यू सी इनएडिक्वेट फंक्शनैलिटी हो सकती है आपके पास, जिससे मुराद ये है कि जब आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करते हो तो आप दूसरे फंक्शन से जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा ना उतरे, बल्कि उसका रिजल्ट डिफरेंट हो, बिकॉज डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट प्रोग्रामर्स लिखते हैं इंडस्ट्री में। तो सो इट हैपन्स कि आपके पास वो इनएडिक्वेट फंक्शनैलिटी की सूरत में आपके पास एरर आए, तो वो एरर भी आपका इंटरफेस एरर है। सिमिलरली लोकेशन ऑफ फंक्शनैलिटी की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली किस क्लास के अंदर कौन सा फंक्शन मौजूद है ये आपको ना पता हो, आप इनअप्रोप्रिएट कॉल को क्लास को कॉल करके उसके फंक्शन को गेट करें, तो इसका मतलब है कि तब भी आपके पास इंटरफेस एरर आएगा जो कि लोकेशन ऑफ फंक्शनैलिटी का इंटरफेस एरर होगा। Similarly, changes in functionality means that if you are going to change any code in one function और वो फंक्शन और बाकी बहुत सारे मॉड्यूल्स के अंदर जो फंक्शंस हैं उनसे लिंक है, तो इसका मतलब है कि जो आप अपना फंक्शन चेंज कर रहे हैं दैट शुड क्रिएट अ रिपल इफेक्ट टू ऑल दोज फंक्शंस। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा और ये चेंजेस वहाँ पर रिपल नहीं होंगी, इसका मतलब है तब भी आपके पास क्या आएंगे, इंटरफेस एरर्स आएंगे। उसके बाद है एडिड फंक्शनैलिटी। कंप्लीट अगर आप मॉड्यूल के अंदर कोई डिफरेंट फंक्शनैलिटी जो कम्प्लीटली न्यू है वो ऐड कर रहे होते हैं, तो जाहिर बात है तब भी आपके पास मॉड्यूल के अंदर चेंजेस हुई हैं तो तब भी आपके पास इंटरफेस एरर्स आएंगे। सिमिलरली मिस यूज़ ऑफ इंटरफेस होता है कि बाज़ दफ़ा दो मेथड्स के बीच में अगर इंटरफेस आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स गलत पास कर दें, आप जो है वो सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स गलत कर दें, उनकी डेटा टाइप्स को गलत कर दें, तब भी आपके पास वो मिस यूज़ ऑफ इंटरफेस होगा, तो ये भी इंटरफेस एरर्स के अंदर आता है। नाउ देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग इंटरफेस एरर जिसे कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरफेस। जब आपके पास डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हो तो आपके पास उस के लिहाज से इंटरफेस की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। वो किस तरीके से कि हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ फंक्शन जो कि आपको एक पूरी आप एरे की लिस्ट क्रिएट करते हैं और दूसरे मेथड को पास करते हैं। दूसरे मेथड ने क्या करना है आपके, जब आप उसको कोई इंटीजर पास करेंगे तो वो उसका इंडेक्स रिटर्न करता है, लेकिन द सेकेंड मेथड बेसिकली वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि उसके पास सॉर्टेड एरे आएगी, ठीक है, जबकि आप जो है वो अनसॉर्टेड एरे भेज देते हैं और वो फिर उसको पहले इंडेक्स जो वो आपको सोचे जो आपको सेकंड मॉड्यूल जो आपको इंडेक्स रिटर्न करेगा वो गलत होगी। क्यों गलत होगी? बिकॉज यू हैव मिसअंडरस्टूड द इंटरफेस, बिकॉज दैट फंक्शन वाज टू सेंड द इंडेक्स ऑफ एन एरे, लेकिन एक्सपेक्टेशन उसकी क्या थी कि आप सॉर्टेड एरे भेजेंगे। सॉर्टेड एरे भेजना ये आपके पास एक इंटरफेस एरर यहाँ पे कॉज होगा कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ क्या एक्सपेक्टेशन लगाया है, ठीक है। इसके बाद आपके पास है डेटा स्ट्रक्चर अल्टरेशन। डेटा स्ट्रक्चर अल्टरेशन में क्या होता है कि आपके पास जो डेटा स्ट्रक्चर डिफाइंड है उसमें अगर आप कोई छोटी सी चेंज लेके आते हैं तो वो चेंज भी आपने उसको मॉनिटर करना है। फॉर एग्जांपल आपने डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन किया है जिसमें आप 1000 पीपल का रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं। सो व्हाट्स अबाउट द 1000 एंड फर्स्ट पर्सन, मतलब आप जब 1000 से ऊपर जा रहे हैं तो क्या उसके लिए आपने कोई लॉजिक डिज़ाइन की है? क्या डेटा स्ट्रक्चर में आपने कोई ऐसा कोड रखा है जो उससे ऊपर बाउंड्री को भी जो है वो टैकल कर सके? So this was about data structure alteration. Then we have inadequate error processing. It's simple कि inadequate error processing कब होती है? जब एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर रहा हो और दूसरा मेथड कोई एरर कॉज करे, तो जब उसका जो एरर होगा वो फर्स्ट मेथड को मिलेगा तो फर्स्ट मेथड उस एरर को के साथ किस तरह डील कर रहा है, उस एरर को किस तरह हैंडल कर रहा है। सो अगर वो एरर को हैंडल नहीं कर पाए इट मीन्स दैट इनएडिक्वेट एरर प्रोसेसिंग है यहाँ पे, तो ये भी आपके पास इंटरफेस एरर में आता है, ठीक है। देन दिस इज एडिशन टू एरर प्रोसेसिंग। इट मीन्स दैट वो फाइल आपकी या वो मॉड्यूल जो आपके एरर को प्रोसेस करता है वो उसमें आप कुछ एडिशन करें, मीन्स आप उसमें
कुछ ऐसा वो मॉड्यूल आपके पास हो जिसमें आप कुछ चेंजेस लेके आए जो कि एरर प्रोसेसिंग को डील करता हो, तो वो भी आपके पास इंटरफेस एरर कॉज होंगे। इसके बाद है इनएडिक्वेट पोस्ट प्रोसेसिंग। तो पोस्ट प्रोसेसिंग से मुराद बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप फाइल को ओपन करते हैं तो उसके बाद आपने फाइल डॉट क्लोज भी करना होता है, बिकॉज उस फाइल को आपने ओपन करके उसमें राइट करके उसको क्लोज करना होता है, जैसे आप फाइल प्रोसेसिंग में करते हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके से ये है कि अगर आपने मेमोरी को एलोकेट किया है तो अब आपने लास्ट में उस मेमोरी को क्या जहाँ पे डीएलोकेट करना था डीएलोकेट किया है। अगर नहीं किया दैट इज इनएडिक्वेट पोस्ट प्रोसेसिंग, मींस द एडिक्वेट पोस्ट प्रोसेसिंग इज आल्सो रिक्वायर्ड, राइट। उसके बाद आपके पास है इनएडिक्वेट इंटरफेस सपोर्ट। इट इज सिंपल कि जैसे आप जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो उस इंटरफेस से कि वो फॉर एग्जांपल आपका डेटा जो है वो टेम्परेचर की अगर बात करें तो सेल्सियस स्केल में लेगा, जबकि वो फ़ारेनहाइट में ले रहा है, तो आप उस आपके पास उस इंटरफेस की इनएडिक्वेट सपोर्ट मौजूद है। देन सिमिलरली आपके पास है इनिशियलाइजेशन या वैल्यू एरर्स। इनिशियलाइजेशन यानी कि आप किसी पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं कर पाते या वैल्यू आप रॉन्ग पास कर रहे हो। फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉइंटर जो एक स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर को पहले पॉइंट करता है, फिर दूसरे कैरेक्टर को, फिर तीसरे कैरेक्टर को एंड सो ऑन। बट जब वो स्ट्रिंग कवर हो जाए उसके बाद आपने उस पॉइंटर को दोबारा रीइनिशियलाइज करना है, तो क्या ये काम आपने किया है या नहीं, ठीक है। तो अगर नहीं किया ये भी आपके पास एरर काज कर सकता है, जिसको इंटरफेस एरर्स में हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन और वैल्यू एरर्स। सिमिलरली वैलिडेशन ऑफ डेटा कॉन्स्ट्रेंट है। इसका मतलब यह है कि जो चीज़ आपने रिक्वायरमेंट्स में डिफाइन की हुई है या जो आपने जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में डिफाइन की हुई है एज इट इज़ वो क्रिएट हो रही है या नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ की वैलिडेशन भी करनी होती है आपने। सो जो ऑलरेडी आपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हुए हैं, जो ऑलरेडी आपने एम्स डिफाइन किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली सब कोड होना चाहिए ताकि आपके ये कॉन्स्ट्रेंट्स भी पूरे उतर सके, वरना आपका जो है वो वायलेशन होगी कॉन्स्ट्रेंट की, वहाँ पे आपके पास इंटरफेस एरर ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा है टाइमिंग या परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स। इसके बाद आपके पास टाइमिंग परफॉर्मेंस प्रॉब्लम से ये मुराद है कि अगर आपके जो सिंक्रोनाइजेशन है वो ठीक हो रही है तो उसका मतलब है ये ठीक है काम, परफॉर्मेंस प्रॉब्लम नहीं आएगा, टाइमिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो मैसेज कम्युनिकेशन या सिंक्रोनाइजेशन बिल्कुल ठीक तरीके से होनी चाहिए। लेट्स सपोज आपके पास दो मेथड्स हैं ए और बी, तो ए को पहले रन होना है, बी को बाद में रन होना है, हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपने उसके लिए प्रॉपर कोड नहीं लिखा, प्रॉपर इंटरफेस डेवलप नहीं की और बी पहले एग्जीक्यूट हो गया तो प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, फेल हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपने प्रॉपर कोड लिखना है ताकि इंटरफेस एरर ना आए। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन चेंजेस है। फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई चेंज आती है तो क्या उस चेंज को थ्रू आउट द कोड कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि नहीं, सारे फंक्शंस को वो चेंजेस भेजी जा रही हैं या नहीं। तो अगर नहीं भेजी जा रही तब भी आपके पास इंटरफेस एरर्स आएंगे। सिमिलरली यू हैव हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस के जो आपका सॉफ्टवेयर है या जो आपका हार्डवेयर है वो उनकी जो इंटरफेसेस हैं वो लिंक्ड हैं, वो प्रॉपरली कम्युनिकेशन उनमें हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे भी आपके पास इंटरफेस एरर आ सकता है। अगर आपके पास लेट्स सपोज हार्डवेयर से आपके सॉफ्टवेयर को सिग्नल मिलने हैं, लेट्स सपोज मेमोरी की बात की जाए तो मेमोरी अगर फुल हो जाएगी तो वो सिग्नल भेजेगी सॉफ्टवेयर को कि मेमोरी इज़ फुल, तो अब डेटा ना भेजे, ठीक है। लेकिन अगर ये सिग्नल सॉफ्टवेयर में नहीं जाता तो आप खुद सोचें कि सॉफ्टवेयर तो डेटा भेजे जा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे डेटा लॉस हो सकता है। सो इंटरफेस एरर्स बेसिकली कम्युनिकेशन के एरर्स हैं, एक दूसरे के साथ जब मेथड्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, मॉड्यूल्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो बहुत तरह के एरर्स आ सकते हैं जो इंटरफेस एरर्स के अंदर लाई करते हैं। तो इनको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। नाउ वी हैव सिस्टम इंटीग्रेशन टेक्निक्स, ठीक है। तो उनमें हमारे पास कुछ अप्रोचेस हैं यहाँ पे, इंक्रीमेंटल, टॉप डाउन, बॉटम अप, सैंडविच, बिग बैंग है। तो अब हमारे पास इसका प्री रिक्विजिट क्या होना चाहिए, अ मॉड्यूल मस्ट बी अवेलेबल टू बी इंटीग्रेटेड। सबसे पहले तो ये कि मॉड्यूल अवेलेबल हो ताकि उसे इंटीग्रेट किया जा सके। मॉड्यूल को अवेलेबल कब समझा जाएगा, जब चेक इन रिक्वेस्ट फॉर्म रेडी होगा। चेक इन रिक्वेस्ट फॉर्म ये है कि जब एक मॉड्यूल बन जाता है तो प्रोग्रामर एक फॉर्म को साइन करता है कि ये प्रोग्राम मैंने लिखा है, इसको टेस्ट मैंने किया है और ये अब रेडी है ताकि इसकी इंटीग्रेशन आगे हो सके। तो उसकी फर्दर इंटीग्रेशन के लिए वो प्रॉपर एक साइंड फॉर्म भेजते हैं, तो वो चेक इन रिक्वेस्ट फॉर्म है। जब चेक इन रिक्वेस्ट फॉर्म रेडी हो जाएगा इसका मतलब है वो मॉड्यूल अब बिल्कुल रेडी है एंड दैट इज अवेलेबल फॉर कंबाइनिंग विद अदर मॉड्यूल्स।
नाउ टेक्निक्स में सबसे पहली टेक्निक आपके पास इंक्रीमेंटल है। इंक्रीमेंटल से क्या कि आप डिफरेंट टेस्ट साइकिल्स परफॉर्म करो ताकि आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो सके, लेकिन वो इंक्रीमेंटल मैनर में होना चाहिए। In each test cycle, a few more modules are integrated with an existing and tested build to generate larger builds. So basically आप जब एक मॉड्यूल आप टेस्ट कर चुके हैं उसके साथ आप दूसरा मॉड्यूल ला के अटैच करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका मतलब है ये अब आपके पास एक टेस्टेड सब बिल्ड बन गया है, ठीक है। तो उसको भी अब आपने उसी तरीके से टेस्ट साइकिल के थ्रू टेस्ट करना है। The complete system is built cycle by cycle until the whole system is operational for system level testing. So एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ आपने इंटीग्रेट किया तो आपके पास एक सब सिस्टम बन गया। अब उस सब सिस्टम को मॉड्यूल थर्ड मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट करके देखें तो अब आपके पास एक सब सिस्टम अगेन बन गया है, और लेकिन आपने टेस्ट साइकिल 2 परफॉर्म किया है। उसके बाद अब आप एक और मॉड्यूल को लेके आए और इस सब सिस्टम के साथ अटैच करें। नाउ यू हैव परफॉर्म टेस्ट साइकिल 3 और अब आपके पास अगेन एक सब सिस्टम बन चुका है। तो ये इंक्रीमेंटल फैशन में आपके पास मॉड्यूल्स इंटीग्रेट होते जा रहे हैं। लास्ट में आपके पास ये प्रॉपर एक सिस्टम बन जाता है जब आपके पास सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे कंबाइन हो जाते हैं, तब आप सिस्टम लेवल टेस्टिंग कर सकते हैं, बिकॉज जब सब मॉड्यूल कंबाइन हो जाए तो आपका सिस्टम बन जाता है। लेकिन जब तक सब मॉड्यूल्स कंबाइन नहीं होते आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग वक्तन फवक्तन परफॉर्म करते रहते हैं, राइट। Now we have an important concept about top down approach. तो top down approach क्या है कि जब आपके पास टॉप वाले मॉड्यूल्स बन जाएं लेकिन आपके पास डाउन वाले मॉड्यूल्स अभी डेवलप नहीं हुए तो उनकी जगह आप स्टब्स लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव दीज मॉड्यूल्स ABCDEFG। नाउ थिंक कि आपके पास ए मॉड्यूल तो बन चुका है, BCD भी बन चुका है, लेकिन अभी EFG नहीं बने। सो आप सी को किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं जबकि आपके पास जो उससे डाउन EFG मॉड्यूल्स हैं वो भी डेवलप ही नहीं हुए। सो सी को हम उसी सूरत टेस्ट कर सकते हैं, उसकी इंटीग्रेशन को उसी सूरत टेस्ट कर सकते हैं जब हमारे पास EF और G मॉड्यूल अवेलेबल होंगे। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो E की जगह मैं कोई डमी कोड लिख सकती हूँ जो कि स्टब कहलाएगा। सिमिलरली अगर F अवेलेबल नहीं है तो F की जगह मैं एक डमी कोड लगा सकती हूँ जिसे हम स्टब कहेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास G अवेलेबल नहीं है तो G की बजाय आप कोई स्टब यूज कर सकते हैं। सो स्टब क्या है, ये एक डमी कोड है जो बिल्कुल वैसे ही एक्ट करता है, आउटपुट देता है जैसे आपके पास एक्चुअल वाला मॉड्यूल आपको आउटपुट देता है। तो इस तरीके से टॉप डाउन अप्रोच में आपके पास स्टब यूज होते हैं, लेकिन ये याद रखना है आपने कि स्टब हमेशा टॉप डाउन अप्रोच में ही यूज होते हैं। तो जब आपके पास ए मॉड्यूल बन चुका है और आपने ए को बी के साथ इंटीग्रेट करना है, ए को सी के साथ इंटीग्रेट करना है, तो जो अनअवेलेबल मॉड्यूल होगा जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ उसकी जगह आप स्टब जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें भी तो क्या लिखा है, मॉड्यूल A has been decomposed into module B, C and D. So basically A module is decomposed to B, C and D. Now modules B, D, E, F and G are terminal modules. So now अब आप यहाँ पे देखें कि B, D और E, F, G आपके पास terminal modules है, C नहीं है बिकॉज E के आगे और मजीद ब्रांचेज हैं। तो फर्स्ट इंटीग्रेट मॉड्यूल A and B, पहले आपने A और B को इंटीग्रेट करना है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो आप क्या यूज कर सकते हैं, C को एज अ स्टब यूज करके देख लें, D को भी एज अ स्टब यूज करके देख लें। सो C और D यहाँ पे आप देखें, इनको आपने एज अ स्टब यूज किया और A और B को इंटीग्रेट कर दिया। अगर आप ये स्टब यूज ना करते तो A और B को आप प्रॉपरली इंटीग्रेट करके टेस्ट नहीं कर सकते थे, बिकॉज A जो है उसके आगे आप देखिए ब्रांच में C है और D है। सो इसका जो इनपुट है C में वो A से आ रहा है, D में जो इनपुट आ रहा है वो A से आ रहा है। तो इट मीन्स के C जब ये इनपुट भेजेंगे तो सिर्फ B में नहीं बल्कि C और D में भी आ रहा है, जिसका इफेक्ट यहाँ पे हो सकता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे स्टब्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब आप देखिए आपके पास B इंटीग्रेट हो चुका है और टेस्ट भी हो चुका है, नेक्स्ट क्या होगा, स्टब D डैश हैज बीन रिप्लेस्ड विद इट्स एक्चुअल इंस्टेंस D। नाउ अगर आप इस स्टब को हटाना चाहें तो आप इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन लेके आए। फर्स्ट करें ये मॉड्यूल अब बन चुका है तो यहाँ पे आप देखें अब आपके पास D मॉड्यूल है लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के साथ है, स्टब आपने हटा दिया, ठीक है। So two kinds of tests are performed. Test the interface between A and D. तो आप A और D के साथ इंटरफेस फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे और टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा
आप क्या कर सकते हैं, रिग्रेशन टेस्ट टू लुक फॉर इंटरफेस डिफेक्ट्स बिटवीन ए एंड बी इन द प्रेजेंस ऑफ मॉड्यूल बी। और एक और रिग्रेशन टेस्ट यानी कि दोबारा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, रिग्रेशन टेस्ट जो आप परफॉर्म करते हैं तो ए और बी के दरमियान कोई इश्यू तो नहीं हुआ जब डी की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हुई है, तो ये आपके पास रिग्रेशन टेस्टिंग होगी। अब आप इसको भी देख सकते हैं। तो सो इस तरीके से ये आपके पास टॉप डाउन इंटीग्रेशन होगी। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, लेट्स सपोज आपने ए बी और डी को देख लिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, स्टेप सी को भी आप रिप्लेस कर दें एक्चुअल सी के साथ। जब आपने एक्चुअल सी के साथ देखा तो अब आप क्या करें, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ई एफ और जी ये तीनों जो है आपको स्टब्स बनाने पड़ेंगे। जब ये तीनों आपने स्टब्स बनाया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करें, टेस्ट द इंटरफेस बिटवीन ए एंड सी। तो इंटरफेस ए और सी को टेस्ट कर लें। तो जब आप ए और सी को टेस्ट करते हैं तो आप सिमिलरली उसी तरीके से काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने ई को आप जो है वो स्टब हटा के एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के साथ टेस्ट कर दिया, देन आप एफ को हटा के टेस्ट कर लें, देन आप जी को हटा के टेस्ट कर लें। तो करते करते आपके पास तकरीबन सारा सिस्टम डेवलप हो जाएगा इसी तरह से स्टेप्स के थ्रू। सो स्टेप बेसिकली क्या है, डमी प्रोग्राम है, ठीक है। सो नाउ वी हैव बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में जैसे आपने टॉप डाउन अप्रोच में स्टब यूज किए, बॉटम अप अप्रोच में आपने टेस्ट ड्राइवर यूज करने हैं। सो टेस्ट ड्राइवर वो आपके पास कोड है जहां से इनपुट डेवलप हो सकती है, जहां से इनिशियलाइज हो सकता है दूसरे मॉड्यूल्स, ठीक है, जहां से दूसरे मॉड्यूल्स की इनिशियलाइजेशन आप कर सकते हैं। So we design a test driver to integrate lowest level modules E, F and G. So let's suppose कि अब आप bottom up जा रहे हैं तो अब आपके पास पहले वाला स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि अभी आपके पास E, F, G अवेलेबल है, लेकिन इससे ऊपर जो मॉड्यूल्स हैं अभी आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप बॉटम अप अप्रोच आपने यूज किया है और बॉटम अप मॉड्यूल्स आपने इस तरह से असाइन किए। तो सबसे पहले जो आपके पास प्रोग्रामर है वो E, F और G मॉड्यूल बनाता है, लेकिन अभी वो डिपेंड करते हैं C के ऊपर। दैट्स वाई C के बजाय आप टेस्ट ड्राइवर यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास C नहीं बना। सिमिलरली जब आपके पास B, C और D बन जाए लेकिन अभी A नहीं बना तो आप अगेन टेस्ट ड्राइवर को यूज कर सकते हैं। सो टेस्ट ड्राइवर बेसिकली क्या है कि जब आपके पास अपर लेवल के मॉड्यूल अभी डेवलप नहीं हुए थे तो तब आप उनसे जो इनपुट जनरेट होती है और वो लोअर मॉड्यूल्स में जाती है, वो इनपुट आप टेस्ट ड्राइवर से जनरेट करवा सकते हैं या वो डमी मॉड्यूल आप यूज कर सकते हैं एज अ टेस्ट ड्राइवर, ठीक है। तो टेस्ट ड्राइवर इस तरीके से काम करता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आप बॉटम अप जा रहे हैं तो सबसे बॉटम पे आपके पास E, F, G थे, इनको इनिशियलाइज करने के लिए आपको टेस्ट ड्राइवर की जरूरत पड़ी। उसके बाद इसको आप रिप्लेस कर दें एक्चुअल सी से। तो एक्चुअल सी ने क्या किया, यहाँ पे एक्चुअल कोड भेजा यहाँ पे E, F और G को एक्चुअल पैरामीटर्स के साथ। नाउ व्हाट हैपेंस कि B, C और D अगर डेवलप हो चुके हैं तो B, C, D को ड्राइव कौन करेगा, A मॉड्यूल। लेकिन A क्योंकि अभी तैयार नहीं है तो उसके लिए आपने पहले टेस्ट ड्राइवर क्रिएट करना है। जब तक कि A तैयार नहीं हो जाता तब तक आप टेस्ट ड्राइवर के थ्रू इन बाकी मॉड्यूल्स को टेस्ट कर सकते हैं। सो ये भी उसी तरीके से डमी प्रोग्राम है जैसे आपके पास स्टेप था, लेकिन ये बॉटम अप अप्रोच में यूज होता है और ये थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। नाउ स्टब्स एंड ड्राइवर्स क्या है, stubs and drivers are two such elements used in software testing process which act as a temporary replacement for a module. तो ये टेम्पररी रिप्लेसमेंट है, जैसे ही आपके पास वो एक्चुअल मॉड्यूल बनता है आप एक्चुअल मॉड्यूल की इम्प्लीमेंटेशन के साथ टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। या फिर ये क्या है, रेप्लिका ऑफ द मॉड्यूल्स व्हिच एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट टू द अनडेवलप्ड और मिसिंग मॉड्यूल। तो जो मॉड्यूल्स अभी बने नहीं हैं उनका आप रेप्लिका कह सकते हैं स्टब्स और ड्राइवर्स को। सो ये भी एज अ मॉड्यूल एक्ट करते हैं, बट दे आर डमी मॉड्यूल्स बिकॉज दे हैव नो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, रादर दे हैव print statements or they are taking some inputs and generating some output on some dummy logic, right? So they are not the actual modules. Now what are stubs? Stubs are used to test modules and are created by the team of testers during the process of top down approach of integration testing. तो जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो रही होती है तो आपने अगर टॉप डाउन अप्रोच यूज किया और टॉप से मॉड्यूल बनाने स्टार्ट किए, डिपेंडेंसी इस तरीके से है कि सबसे पहले A मॉड्यूल बनाया, देन B और C और D बनाया। तो इस तरीके से अगर आपने क्रिएशन की है, इसका मतलब है आप अब स्टब्स यूज करके टेस्टिंग कर सकते हैं। With the assistance of these test stub, testers can stimulate the behavior of the lower level modules that are not yet integrated with the software. So you see कि अभी तक जब वो मॉड्यूल बने नहीं है, स्टिल हम उनको टेस्ट कर सकते हैं इंटीग्रेशन के साथ।
तो पहले हम डमी मॉड्यूल के साथ उनको टेस्ट करते हैं, फिर एक्चुअल के साथ, और मोस्टली जब डमी के साथ जो रिजल्ट आता है वही आपके पास एक्चुअल के साथ आता है, बिकॉज तकरीबन आपका जो मॉड्यूल है इंडिपेंडेंटली वो टेस्ट हो चुका होता है, ठीक है। Similarly, you see about the drivers that like stubs, they are used by the software testers to fulfill the requirement of missing or incomplete components and modules. But now remember here that they are complex than stubs and they are used in bottom-up approach of integration testing. ठीक है, and drivers can be utilized to test the lower level of the code when the upper level of code or modules are not developed. So ये टेस्ट करते हैं लोअर लेवल ऑफ कोड को जब तक कि लोअर लेवल ऑफ मॉड्यूल आपके पास डेवलप हो चुके होते हैं, लेकिन अपर लेवल के मॉड्यूल आपके पास मौजूद नहीं होते, तो अपर लेवल के कोड को या अपर लेवल के मॉड्यूल को आप रिप्लेस कर सकते हैं ड्राइवर के थ्रू, और लोअर लेवल के कोड को ड्राइव करवा सकते हैं फ्रॉम दैट डमी मॉड्यूल्स। तो इस तरीके से ड्राइवर्स आपके पास काम करते हैं। नाउ अगर आप ये एक डायग्राम अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले वेबसाइट की लॉगिन है। लॉगिन होने के बाद ही आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट हो सकती हैं, और जब आप पेमेंट करेंगे तभी आपसे पूछा जाएगा कि आप कैश के थ्रू कर रहे हैं, डेबिट कार्ड है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ई वॉलेट है, ये जो भी। इसी तरह से आप ऑर्डर फूड करते हैं तो आप ऑर्डर समरी, जो आपके पास फूड के ऑर्डर की जो समरी होगी वो भी आप जनरेट करवा सकते हैं। नाउ हियर यू सी कि ये आपके पास जो है वो सबसे पहला वाला जो मॉड्यूल है यहाँ पे। अगर हम अब टॉप डाउन अप्रोच यूज करेंगे तो सबसे पहले हम वेबसाइट को लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे, जहाँ से यूजर जो है साइन अप होने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद वो फूड ऑर्डर कर सकते हैं, उसके बाद वो पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद पेमेंट आप उसके वो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। तो जब आप कोड कर रहे होते हैं तो उसमें आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आपने कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है। सो अगर आप टॉप डाउन यूज़ कर रहे हैं लेट्स सपोज, तो आप सबसे पहले लेट्स सपोज वेबसाइट लॉगिन आपने बनाई है, उसके बाद आप ये वाला मॉड्यूल जनरेट करते हैं, देन ये वाला मॉड्यूल। नाउ पेमेंट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, दैट ईदर यू आर लॉगिन और नॉट। अगर आप लॉगिन ही नहीं है तो यू कैन नॉट मेक द पेमेंट or you cannot order the food. So think that a person is ordering some food but he is not logged in, so it's not possible. These modules are not independent of each other, they are dependent. It means आप login होंगे तभी आप food order कर सकते हैं। So now here आपने जब bottom up testing करनी है तो आप ड्राइवर यूज करेंगे, जब आपने टॉप डाउन यूज करनी होगी तो आपने स्टब यूज करनी है। सो लेट्स सपोज आप टॉप डाउन यूज करते हैं, तो यहाँ पे लॉगिन के बाद आप फूड ऑर्डर करना चाह रहे हैं, तो आप इसकी इंटीग्रेशन देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बेसिकली स्टब क्रिएट कर देंगे। यू हैव नॉट द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑर्डरिंग द फूड मॉड्यूल बट यू जस्ट प्रिंट द स्टेटमेंट दैट ऑर्डर फूड। तो यहाँ पे आपने एक डमी लॉजिक क्रिएट कर दिया कि फूड ऑर्डर हो रहा है लेकिन लॉगिन के बाद। तो आप इस तरीके से ये टॉप डाउन अप्रोच यूज कर सकते हैं। अगर आप बॉटम अप की बात करते हैं तो बॉटम अप में क्या हो सकता है कि जैसे आपके पास ये, आप इन चीज़ों को तभी यूज कर सकते हैं जब आप पेमेंट का मॉड्यूल कंप्लीट करें। विदाउट पेमेंट हाउ कैन यू यूटिलाइज द कैश मॉड्यूल और डेबिट और क्रेडिट कार्ड मॉड्यूल और ई वॉलेट मॉड्यूल। सो ये आप उस वक्त तक नहीं यूज कर सकते जब तक कि आपके पास पेमेंट मॉड्यूल ना हो। तो लेट्स सपोज पेमेंट मॉड्यूल अभी आपने बनाया ही नहीं है, आपने जनरल मॉड्यूल अभी नहीं क्रिएट किया, आपने स्पेसिफिक कैश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ई वॉलेट मॉड्यूल क्रिएट कर दिया। सो नाउ व्हाट हैपेंस दैट अगर आपने ये मॉड्यूल नहीं बनाया तब भी आप यहाँ से इनपुट जनरेट कर लें कि कुछ पेमेंट रिक्वायर्ड है। जब पेमेंट रिक्वायर्ड है तो उसका मेथड क्या हो सकता है, थ्रू कैश भी हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी, ई वॉलेट भी। सो यहाँ पे आपने जो डमी मॉड्यूल क्रिएट किया कि आपको पेमेंट रिक्वायर्ड है, इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ना इसका अभी फिलहाल कोई डेटाबेस के साथ लिंक है, तो यहाँ पे आप क्या जनरेट कर सकते हैं, दैट इज यू कैन यूज ड्राइवर्स, राइट। सो इन दिस वे ड्राइवर वर्क दैट इन बॉटम अप अप्रोच आप ड्राइवर्स यूज कर सकते हैं, टॉप डाउन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप स्टब्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीकाकार है आपके ड्राइवर्स और स्टब्स का इन बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच। नाउ देयर आर अदर टू अप्रोचेस एज वेल। बिग बैंग अप्रोच क्या है कि सब मॉड्यूल्स को पहले इंडिविजुअली टेस्ट कर लें और फिर इकट्ठा सभी को इकट्ठा करके एक साथ ही सिस्टम को एज अ होल चेक कर लें, यानी कि सबकी इंटीग्रेशन एक साथ ही चेक कर ली जाए, तो इसको बिग बैंग अप्रोच कहेंगे। जबकि सैंडविच अप्रोच क्या है
In this approach, a system is integrated using a mix of top-down, bottom-up and Big Bang approaches. So सैंडविच में आप मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं टॉप डाउन का, बॉटम अप का, बिग बैंग का, और एक्चुअल में भी इसी तरीके से होता है कि कुछ मॉड्यूल्स को टॉप डाउन तरीके से चेक कर लिया जाता है, टेस्ट कर लिया जाता है, किसी को बॉटम अप से, किसी को बिग बैंग अप्रोचेस से. अब जो आप इसमें टेस्ट केसेस बनाएंगे वो भी आप जे यूनिट में डेवलप कर सकते हैं. इसके अलावा a hierarchical system is viewed as consisting of 3 layers. The bottom up approach is applied to integrate the modules in the bottom layer. तो ये hierarchical view है. अगर आपने बॉटम लेयर्स को यूज़ करना है तो उनको टेस्ट करना है तो आप बॉटम अप अप्रोच यूज़ कर सकते हैं. टॉप की लेयर्स को चेक करना है तो आप टॉप डाउन अप्रोच यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपने मिडल लेयर्स को चेक करना है तो आप बिग बैंग अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं. टॉप डाउन और बॉटम जो लेयर्स हैं उनके लिए आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि आप क्या यूज़ करेंगे, बॉटम अप अप्रोच यूज़ कर लेंगे. सो इस तरीके से आपके पास सैंडविच अप्रोच यूज़ हो जाती है. So now here are the references, and if you have any questions you may ask. Thank you for concentrating on software testing. Allah Hafiz.